Welcome SVPH to our presentation on chapter number 5, Clothes We Wear, and this is part 6 of our presentation. So we have completed this chapter in our last presentation, and I hope that you have learned the definitions of whatever they are present in this presentation, in this chapter, and आई होप कि आपने सारी डेफिनेशंस लर्न कर लिए जो इस चैप्टर में हैं और आपने इस चैप्टर को वापस पढ़ लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 ए. क्वेश्चन ए, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको क्या करना है, ये टिक करना है करेक्ट ऑप्शन में. ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें आप सही वाले पे आपको टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. वी वेयर डैश क्लॉथ्स इन समर. सो वी वेयर डैश क्लॉथ्स इन समर. हम समर में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? डू वी वेयर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स? नो. डू वी वेयर वुलन क्लॉथ्स? नो. डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स? Yes, we wear cotton clothes in summer. Very good. Good job, children. Now, fibers obtained from plants are called. तो fibers जो हमें plants से मिलते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? Do we call them synthetic fibers? No. Do we call them artificial fibers? Absolutely no. And do we call them natural fibers? Yes, we call them natural fibers. Very good. Now weaving is done on big machines called. तो weaving हम एक बड़ी मशीन में करते हैं. उस बड़ी मशीन को हम क्या बोलते हैं? Do we call them चरखा? No. Do we call them yarn? No. Do we call them loom? Yes, we call them loom. Firan and salwar are worn in the state of. तो फिरान एंड सलवार एक स्पेशल ड्रेस है जो हम एक पर्टिकुलर स्टेट में पहनते हैं. सो डू वी वेयर फिरान एंड सलवार इन राजस्थान? नो. डू वी वेयर फिरान एंड सलवार इन उत्तर प्रदेश? नो. एंड डू वी वेयर इट इन जम्मू एंड कश्मीर? यस, वी वेयर इन जम्मू एंड कश्मीर. वेरी गुड. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स गो to our question number 2, that is state whether true for T or false, which is F. Okay, so state whether true, which is T. True के लिए हमें T करना है, and for false we have to fill F. We wear clothes to cover and protect our body. तो हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? टू कवर, अपने आप को कवर करने के लिए, ढकने के लिए, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, अपनी बॉडी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. सो वी वेयर क्लोथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू. यस, वेरी गुड. तो टी, सो वी हैव टू पुट टी फॉर ट्रू, राइट? नाउ फाइबर्स made by men using chemicals are called natural fibers. तो जो fibers होते हैं which are made by men, जो हम humans बनाते हैं, men बनाते हैं using chemicals, chemical को use करके उन्हें हम natural fibers बोलते हैं. Is it right? Is it true or false? Yes, it is false. What do we call them? We call them synthetic fibers. Synthetic fibers बोलते हैं ना? Very good. Okay, synthetic, synthetic fibers. fibres, fibers. Very good. Okay, now a power loom is driven by electric power. तो एक power loom machine है which starts working with the help of electric power. Is it true or false? Yes, it is true. Good, children. It is true. I'll write it in front of this. Okay, now dyeing is a process of coloring the fabric. तो डाइंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलरिंग ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक को कलर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइंग बोलते हैं. So is it true or false?
It is true. Very good. Now, silk and woolen cloths are protected from pests by using detergents. तो जो silk and woolen के जो cloths होते हैं, they are protected from pests. जो insects है like moth and silverfish, ठीक है, उन्हें हम किससे protect करते हैं? Detergent को use करके. Is it true or false? Yes, it is false. How do we protect this silk and woolen cloth? We protect them from pests by using naphthalene balls और नीम लीव्स. किनको यूज करते हैं हम? नीम लीव्स को यूज करते हैं. ओके, NEEM, नीम लीव, LEAVES, लीव्स को यूज करते हैं. और किसको यूज करते हैं? नेफ्थलीन बॉल्स को यूज करते हैं. NAPH, नेफ्थलीन बॉल्स. ओके, नेफ्थलीन बॉल्स को हम यूज करते हैं. फाइन. सो वी हैव completed question number 2. Now let's go to question number 3. Give reasons. Okay, we wear light colored cotton clothes in summer. तो गिव रीज़न, आपको इन सब के रीजंस देने हैं कि ऐसा क्यों है. ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आपको इनका रीज़न देना है कि ऐसा क्यों है. वी वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर. हम समर में लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. तो क्यों पहनते हैं? सो वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर. वाई? बिकॉज लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं, दे डू नॉट एब्जॉर्ब. सो the light colored cloths, cotton cloths, they do not absorb the heat. वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, गर्मी को सोखते नहीं है, राइट. एंड कीप अस कूल, वो हमें कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं गर्मी में. ओके, सो दिस इज द रीजन वाई वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. Naphthalene balls are used to protect silk and woolen cloths. तो naphthalene ball है that is used to protect silk and woolen cloths. तो ऐसा क्यों है? So naphthalene balls, they are used to protect silk and woolen clothes because they protect the silk and because क्यों? क्योंकि जो naphthalene ball है that keeps the pest like we can say moth or the silverfish away from the silk and woolen cloths. तो that is why the जो naphthalene balls हैं वो protect करती हैं silk and वुलन क्लॉथ्स को. ओके, दैट इज वाई दे आर यूज टू प्रोटेक्ट सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स. क्यों? क्योंकि जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं वो पेस्ट होते हैं लाइक सिल्वर फिश एंड मॉथ, उन्हें दूर रखती हैं, दे कीप देम अवे. ओके, नाउ क्लॉथ्स शुड बी ड्राइड. सो क्लॉथ्स शुड बी सन ड्राइड आफ्टर वॉशिंग. तो जो कपड़े हैं उन्हें हमें धूप में सुखाना चाहिए. ऐसा क्यों होता है? तो वाई? बिकॉज क्लॉथ्स व्हेन दे आर ड्राइड इन सन, दे मेक द क्लॉथ्स जर्म फ्री. तो हम जैसे धूप में सुखाते हैं कपड़ों को, उससे क्या होता है, जो हमारे कपड़े में जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं. सो वाई डू वी वॉश क्लॉथ्स? आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ्स, वाई डू वी ड्राई द क्लॉथ्स अंडर द सन? टू मेक दैम जर्म फ्री. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ वन. फैब्रिक इज गिवन अ स्पेशल ट्रीटमेंट बिफोर मेकिंग इट रेडी फॉर स्टिचिंग. तो वाई the fabric is given a special treatment before making it ready for stitching? क्योंकि जो फैब्रिक है उसे हम क्या करना है, हमें उसे वाटर प्रूफ बनाना होता है, राइट. वाटर प्रूफ, स्मूथ बनाना होता है, राइट. सो यस, वी हैव डन दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन विच इज D. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. फाइन. नाउ व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग क्या होता है? So it is spinning. What is spinning? Spinning is the process of converting yarn into a fiber, right? Yes. Now let's go to question number 2. How can we take care of clothes? Explain it briefly. Okay. तो हमें clothes की कैसे care? How should we take care of our clothes? So we have done this. Okay. So we have done this. You can go to you can go to page on which we have done this. How do we take care of clothes? So I will just give you the example for it. Like, how do we take care of clothes? We wash them regularly, right?
we wash our clothes regularly with good quality of detergents and soaps. अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट्स एंड सोप यूज़ करते हैं, राइट? सो वी वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली. वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली विद good quality of detergent or soaps. Then we should dry our clothes in the sun to make it germ free. हमें अपने क्लॉथ्स को कहाँ पे सुखाना चाहिए? धूप में सुखाना चाहिए, जिससे जो हमारी क्लॉथ्स हैं वो germ free हों. Then what do? We iron our clothes regularly. After the clothes are dried up, we iron our clothes. जब हमारे कपड़े सूख जाते हैं हम क्या करते हैं? उन्हें अच्छे से वेल आयरन करते हैं, राइट? प्रेस करते हैं हम उनकी, जिससे जो रिंकल्स होते हैं कपड़े में वो नहीं बनते हैं. एंड वी लुक स्मार्ट. नाउ व्हाट इज द अनदर वन, लास्ट वन? इट इज वी स्टोर आवर क्लॉथ्स, राइट, प्रॉपरली. वी स्टोर आवर क्लॉथ्स प्रॉपरली, राइट, इन अ कबर्ड. एंड कैसे कबर्ड में करते हैं? विच इज नीट एंड ड्राई. ओके, सो वी स्टोर आवर क्लॉथ्स प्रॉपरली इन कबर्ड. एंड विच टाइप ऑफ कबर्ड? विच इज ड्राई एंड नीट. ओके. Now I hope this question is clear to you. Now let's move on to question number 3, which is what is a uniform? Uniform क्या होती है? It is like people wear different clothes in different professions, right? That is a uniform. Okay. Now what are natural fibers? Natural fibers क्या होते हैं? What are natural fibers? Natural fibers. What are natural fibers? Okay, I'll just tell you. ओके, सो नेचुरल फाइबर्स. सो इधर क्या होगा इसकी डेफिनेशन? फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? सो द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो फाइबर्स हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. ओके. नाउ हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स? ये नेचुरल फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है? So synthetic fibers, these are the fibers which are made by men using chemicals, right? That is called synthetic fibers. और natural fibers क्या होता है? These fibers that are obtained from plants and animals. ठीक है. Natural fibers में हम ना तो man बना रहे हैं, ठीक है, using chemicals. Natural fibers ना तो हम chemical use करके बना रहे हैं और कोई man भी नहीं बना रहा. ये तो हमें किससे मिल रहे हैं? Plants and animals से मिल रहे हैं. और जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिल रहे हैं, राइट? वो हम कौन बना रहे हैं? मैन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स को यूज़ करके. नाउ इसमें आप एग्जांपल्स में लिख देना, लाइक नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल क्या है? सिल्क, वूल. ओके. एंड फॉर सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल क्या है? नायलॉन, पॉलिस्टर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज वीविंग एंड हाउ इट इज डन? वीविंग क्या होता है? ओके, तो व्हाट इज वीविंग? वीविंग इज अ प्रोसेस. ओके, व्हाट इज वीविंग? सो व्हाट इज वीविंग एंड हाउ इट इज डन? तो वीविंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस, राइट? सो हियर वी विल गो. व्हाट इज वीविंग? इट्स रिटन ओवर हियर. वीविंग इज अ प्रोसेस, राइट? सो वीविंग इज अ प्रोसेस बाय विच yarn or threads they are interlaced to form a fabric. ठीक है. तो वीविंग की डेफिनेशन क्या होगी? वीविंग इज द प्रोसेस बाय विच द yarn और द थ्रेड दे आर इंटरलेस्ड टू फॉर्म अ फैब्रिक. तो व्हाट इज वीविंग? वीविंग अ प्रोसेस. वीविंग एक प्रोसेस है जिसमें जो yarn है या फिर थ्रेड्स हैं, दे आर इंटरलेस्ड, लाइक आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ इंटरलेस्ड, राइट? टू फॉर्म अ फैब्रिक. ठीक है, फैब्रिक को बनाने के लिए. एंड द नेक्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ इट इज डन? तो वीविंग इज डन on a big machine called looms. वीविंग किस में की जाती है? बिग मशीन्स में की जाती है, और इन बिग मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? लूम बोलते हैं. So with this we are done with our question answers. Okay, so we are completed with the chapter also. Along with the question answers हमने अपना question answer complete कर लिया है और chapter भी complete कर लिया है. So children, what you have to do? You have to read the chapter once again. आपको chapter एक और बार पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हमने इस प्रेजेंटेशन में किए हैं, आपको उन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है. ओके, सो थैंक यू.